اس دشواری پر قابو پانے کی ہدایات بالکل واضح ہیں۔ اپنی شرائط میں سے کسی ایک کو قبول کروانے کی ضرورت پڑی تو ابراہیم پاشا کو 10,000 اشرفیاں رشوت میں دینے کی ہدایت ملی ہے۔ ہاں، میرا خیال ہے ہمیں پہلے ابراہیم پاشا اپنے پاس بلائیں گے۔ کسی طرح بھی معاملہ طے کرنا ہوگا ان سے۔ کس طرح سے تم مجھے یہ گستاخانہ پیشکش کر سکتے ہو؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ جب تم لوگ مجھے رشوت کی پیشکش کر رہے تھے اس وقت تصور بھی کیسے کر لیا تم لوگوں نے کہ میں یہ پیشکش قبول کرنے کا سوچ بھی سکتا ہوں؟ اپنی زبان کٹنے سے پہلے یہ پیشکش آقا کو جا کے کریں۔ شہنشاہ محترم، جرمنی، ہالینڈ، بوہیمیا، ہنگری سے آپ سب تشریف لائے ہیں۔ آپ نے میری عزت افزائی کی تو میں یہ دعوت قبول کر کے یہاں تشریف لانے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سلطان سلیمان یورپ کی تسخیر کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے روکنے کے لیے ہمیں متحد ہو کر اپنی عیسائی طاقت سے زیر کرنا ہے۔ اس مقصد میں کیا آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ روم اور ہمارے مقدس کلیسا کی مدد سے ہم روانہ ہوں گے۔ کیا تیار ہیں آپ لوگ سب؟ تو پھر فتح ہماری ہوگی۔ میں مارکہ ہنگری اور ویانا میں 2 مرتبہ فتح کیے ہوئے ملک کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ یہ مطالبات سراسر ناجائز ہیں۔ اگر تم لوگ ہمارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہو تو پھر تم لوگوں کو ہنگری کی حکومت سے دستبردار ہونے کا اعلان کرنا ہوگا۔ میں اپنے ساتھ بادشاہت میں کسی کو بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، بالکل بھی۔ فرڈیننڈ ہماری نظر میں بوہیمیا کا بادشاہ نہیں، وہ صرف ویانا کا محافظ ہے بس۔ شارکلین بھی جرمنی کا شہنشاہ نہیں، ہسپانیہ کا حاکم ہے۔ اس کا عہدہ میرے وزیر اعظم ابراہیم پاشا سے بڑھ کر نہیں۔ آقا، سفر پہ جانے کی بہت خوشی ہے۔ پوچھ سکتا ہوں کہ کب روانہ ہو رہے ہیں؟ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ ایک طاقتور سپاہ پر قابو رکھنے کے لیے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے تاکہ جیت ہمارا مقدر بنے۔ کوئی بھی فتح آسمان سے نہیں اترتی، اس کے لیے کڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم اپریل میں روانہ ہو جائیں گے۔ بے چینی سے اس دن کا انتظار کروں گا۔ مال کوچو، ابراہیم پاشا، آپ کیا کہتے ہیں؟ شہزادے بے قرار ہیں جنگ کے لیے۔ اللہ کے حکم سے آقا۔ دیکھتے ہیں پھر۔ میری تلوار لاؤ۔ آقا کے بے پناہ تجربے اور مہارت کے سامنے میں کتنا ٹھہر سکتا ہوں معلوم نہیں مجھے۔ دیکھتے ہیں مصطفیٰ۔
خوشحالم که تو تنیش خمو بینم مصطفی. अपने साथ हमेशा दूसरा हथियार भी रखा करो मुस्तफा। तुम्हें जवान और ताकतवर देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बाज औकात तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख भी होता है। मजबूत और जवान होते हुए तुम अपनी मासूमियत खो रहे हो। ये अफसोस की बात है ना। मुस्तफा, तुम अपनी मासूमियत खो रहे हो। सुल्तानकम, अगर रुकना चाहूं तो आप ना रुकेंगे कभी भी। इस बार भी जंग में सबसे आगे होंगे। कम से कम इसे अपने पास रख लें। हर तरह की मुसीबत से महफूज रखेगा आपको, कतई ना उतारना। शहजादी, मैं हर सूरत वापस आऊंगा, क्योंकि कोई भी ताकत मुझे आपसे और मेरी औलाद से जुदा नहीं कर सकती। फिर भी इसे पहन ले। ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो। माफ कीजिएगा, मैं समझी आप चले गए होंगे। निगार को मैंने बुलवाया है, मैं इसके साथ महल जाऊंगी, वहां रहूंगी। मालूम ही है नसू अफंदी आपके साथ जा रहे हैं, ये मेरे साथ होगी। अच्छा सोचा है आपने। आका, लंबर्ग काउंटो जोसेफ और नोगरोला काउंटो लियोनार्ड आपसे शर्फ मुलाकात की इजाजत चाहते हैं। फरमाइए, आपके मुतालबात सुन रहे हैं। इब्राहिम पाशा मोहतरम, फर्डिनेंड को हंगरी का शाह कबूल कर लें, हंगरी की सरजमीन इनके हवाले कर दें, सुलह का ऐलान करवाएं और इस जंग के बदले में आपके नुकसान की तलाफी के लिए 25,000 सोने की अशरफियां आपको पेश करने का पैगाम लाए हैं। ये काफी दीदा दिलेर लग रहा है इब्राहिम पाशा। सिर्फ 25,000 अशरफियां, कोई काबिल गौर पेशकश नहीं। जनाब सुल्तान सुलेमान खान को आगाह करें, ये तादाद 1 लाख अशरफियों तक बढ़ाई जा सकती है।
हिस्पानिया का बादशाह काफी अरसे से हमें जंग का इंदिया दे रहा है। अल्लाह की मदद के साथ मैं अपनी सिपा समेत आ गया हूं। अगर उसमें हिम्मत है तो मेरा इंतजार मैदान कारजार में करे, और अगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं तो इसके लिए वो हरजाना अदा करे जितना मैं तलब करूं। इसके अलावा कोई और पेशकश मेरी नजर में काबिल कबूल नहीं। बता देना उसे। अगर वो इस पे राजी नहीं तो जंग के लिए तैयार कर ले खुद को। शहंशाह जहां यहां पहुंचने के बाद वापस नहीं जा सकता। आपकी पेशकश का मैदान कारजार में मुआवजा करके फैसला करेंगे। सुल्तान सुलेमान 400 तोपों और 2 लाख सिपाहियों के लश्कर जर्रार समेत हम पर हमला आवर होने की तैयारी कर रहा है। हमें ये बताओ कि सफीरों के मुतालिक क्या खबर लाए? नहीं जनाब, लगता है आपकी पेशकश कबूल नहीं की गई। बेशक ना करें, हम उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा लश्कर बना लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर इस बार उन्हें उनकी औकात याद दिला देंगे। तुम अपने आप को संभालो फर्डिनेंड। तुम्हारे ख्याल से क्या तुम उनसे लड़ने की सलाहियत रखते हो? आसपास की मदद से तुम तुर्कों को शिकस्त नहीं दे सकते। ये सारी गलती तुम्हारी है। हम पर सुल्तान दूसरी बार तुम्हारी वजह से मुसल्लत हो रहा है। आखिर क्या जरूरत थी बुडिन पर हमला करने की? भला कौन सी ऐसी मोहब्बत है तुम्हें हंगरी से? तुम जानते नहीं हॉब्सबर्ग शहंशाह के लिए हंगरी की क्या अहमियत है? आखिर तुम क्यों लड़वाना चाहते हो उनको सुल्तान सुलेमान से? इब्राहिम पाशा, आप अभी तक यही हैं? जाएं और अपने अजीम शहंशाह तक जवाब पहुंचाएं। चलें। हमारे शहंशाह शार्कलेन के हुक्म पर 2.5 लाख सिपाहियों का लश्कर तैयार है। ये जंग दोनों तरफ के लिए नुकसान अजीम का सबब हो सकती है। अव्वल तो आपकी गलती की तस्हीह कर दूं। शार्कलेन कोई शहंशाह नहीं है। सातों आसमानों और जमीन पर एक अल्लाह की अजमत के साए तले जिस जहान में हम रह रहे हैं उसका एक शहंशाह है, और वो सुल्तान सुलेमान खान है। ये बात जहन नशीन कर लो। अब आते हैं तुम्हारे लश्कर जरार पर। अगर वाकई आप हमसे ज्यादा ताकतवर हैं और तादाद में भी ज्यादा हैं तो मैदान कारसाज में आए, हमारे मुकाबला कर सफ आ रहा हूं। पहले उस वक्त मालूम हो जाएगा कि ताकतवर कौन है। फ्रांसीसी सफीर काउंट रेनशॉन। सबसे पहले शर्फ़े मुलाकात बख्शने के लिए शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे वतन के लिए फख्र की बात है। सुल्तान सुलेमान खान के लिए फ्रांस के शाह फ्रांसो और उनकी वालदा डचेस एंग्लोमे की तरफ से सलाम और एहतराम पेश करता हूँ। खुश आमदीद। बादशाह सलामत। आपका और कीमती वक्त जाया करना नहीं चाहता। इजाजत दें तो फौरन असल बात शुरू करूँ। फरमाइए, हम सुन रहे हैं। शाह फ्रांसवा आपके इस तुर्क लश्कर की हर तरह से मदद करना चाहते हैं। बादशाह सलामत, आप अपना रास्ता इतालिया की तरफ बदल लें तो मिलानो और रोमा को हासिल करना मुमकिन होगा। आपके ताउन से ये फ्रांस की हाकमियत में आ जाएंगे और इस तरह से फ्रांस और तुर्क इत्तेहाद से एक अजीम फतह भी हासिल होगी हमें। इसके साथ माल गनीमत भी हाथ आएगा बहुत ज्यादा।
और आपसे दायमी दोस्ती के मुतमन्नी हैं हम। जहां पना फ्रांस के सफीर तशरीफ लाए हैं। ये सफीर साहब मेरे ख्याल से तो अपनी आंखों में इत्तेहाद के ख्वाब सजा कर आए हैं, ऐसा लगता है। मुझे भी यही लगता है। अगर हमारा इत्तेहाद हो गया तो तुर्क एक साथ मुल्क से महरूम हो जाएंगे और हमें इस तरह एक नई ताकत मिल जाएगी। जहां पना हम पहले की तरह अपने मुआहदे पर कायम हैं, ये आगाह करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इस तरह हम तुर्क फौज का हमला रोक सकेंगे। फ्रांसवा क्या चाहता है इसके बदले में? वो चाहते हैं कि इसके बदले में अतालिया हमें दे दें। यानी आपके बादशाह फ्रांसवा इटली हासिल करने के लिए मदद चाहते हैं मुझसे। हमने जंग का हदफ पाए तख्त से ही तय कर लिया था और वो है शाकलेन। उसे सफ़े हस्ती से मिटाए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। यहाँ आपकी मौजूदगी से उनकी सिपाह पसपा होने पे मजबूर हो गई है मेरे आका। तमाम किले बारी बारी आपके हवाले कर रहे हैं। आप ही फतह याब होंगे, लेकिन ये मुकम्मल फतह नहीं होगी क्योंकि शाकलेन आपके सामने नहीं आएगा। तो फिर शहंशाह कहलाने वाला शाकलेन अपने ही जाल में फंस गया है। आवाम की नजरों में उसका जो एतबार था वो भी खो देगा और मैं फिर से फतह याब लौटूंगा। मोहतरम बादशाह, आप हमारी मदद करेंगे, हमें इस बात का पूरा यकीन था। आपने पहले भी इज्जत अफजाई की थी हमारे शाह को कैद से बचाकर। बादशाह फ्रांसवा और उनकी वालिदा मोहतरमा को मेरा सलाम कहिएगा। अगर वो चाहें तो तुर्क कमांडर बारबरोस खिजर रईस की बहरिया को मिलानो और जेनेविस के हुसूल के लिए आपकी मदद का हुक्म दे देता हूं। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं। मेरी फौज की तादाद तुर्क लश्कर को मात देने और हंगरी को हासिल करने के लिए काफी है। आप किसी भी दूसरे शाह से इत्तेहाद करने के लिए आजाद हैं। ऐसा क्यों किया आपने? अगर फ्रांस की ताकत भी हमारे साथ होती तो हमारी ताकत और ज्यादा। फ्रांसवा अधूरी चालें चल रहा है। एक तरफ तुर्कों से सिफारतकारी हो रही है। आंद्रे डोरिया को खबर भेजो फौरन। अतालिया के साहिलों की तरफ फौरन पेशकदमी करें और किसी को वहां से गुजरने न दें। इब्राहिम पाशा जैसे ही गिंज किला फतह करेंगे हमारा रास्ता खुल जाएगा और शाकलैन मैदान जंग में आने पर मजबूर हो जाएगा। कोई और रास्ता नहीं होगा उसके पास। आका, मैं भी इब्राहिम पाशा के साथ जाना चाहता हूं। उजलत मत करो, मैं तुम्हें अलग नहीं करना चाहता क्योंकि अभी और फतूहात बाकी हैं। आका, शहजादे। कहो देली अली। आका, अभी अभी खबर मिली है कि दुश्मन की सिपाह ने हमारे लिए कई जगहों पर घात लगाई है। उन्हें नाकाम करने के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। फौरन जाएं और जरूरी तदाबीर करें। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ।
आगे नहीं जाना, लश्कर के पीछे रहोगे तो इजाजत दूंगा। ख्याल रखना इसका। पाशा मोहतरम, सूरत हाल से आगाह करो पाशा। पाशा, उनका हिसार अब तक तोड़ा न जा सका। सुरंग साजों ने किले के नीचे कई सुरंगें खोद डाली हैं, लेकिन कमांडर निकोला यूरिसेज तनदही से कर रहा है अपना दिफा। 15 दिन हो चुके हम उसे अब तक जेर ना कर सके। अब इंतजार करना बेसूद है मुस्तफा पाशा। एक कासिद भेजो यूरिसेज की तरफ और उन्हें तस्लीम करने का हुक्म दो। यह हमारी आखिरी पेशकश है, वरना उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। अगर कोई सामने आया तो अपनी जान से जाएगा। गोंस में मार्का सरगर्मी से जारी है। मुझे इस शदीद मुकाबले की तवक्को नहीं थी, बिल्कुल भी। मगर सिकोस, एरशेक, सरेचिया, कापोलना, बाबोचका और बलोर किले मस्मार कर दिए गए। अब हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि अब हम तुर्कों के मुकाबले आ जाएं। उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर सिपाह है हमारे पास। फर्डिनेंड, मेरे प्यारे भाई, मुहाज कितनी जल्दी भूल गए तुम। मालूम है 2 घंटों में खत्म कर दिया था लुई और उसके लश्कर को। तुर्कों का मसला जमीन नहीं है फर्डिनेंड, वो हमें जबरदस्ती मैदान जंग में घसीटना चाहते हैं। तुम्हारे जमा करदा सिपाही जितने भी ज्यादा हों, सुलेमान के जानिसारों से बिल्कुल नहीं जीत सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी जगह साकित रहना होगा। याद रखना, अपनी ताकत को मैं हरगिज कमजोर होने नहीं दूंगा। सब जर्मन लोग रेन बादिसी की तमाम तुर्क ताकतों को पूरी तरह कमजोर कर देंगे, समझे? इस तरह से वो एक शानदार और नाकाबिल तस्खीर मिसाल कायम करेंगे पूरे यूरोप के अंदर। गिन्स पर हमले जारी हैं आका। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। अब हमारी फौजें वुतुश, जफादे, अनीजे, कपूरनाक, बेशकर, तुश्केवर, कमिंडवर, रूम, एकरवर, मेश्तर और हिडवेक के किलों पर काबिज हैं। अब तक हमने 20 किले फतह कर लिए हैं और आका, राब नहर पर पुल बनाकर हम दूसरी तरफ पहुंच गए। शाकलेन हमारे चंगल में फंसता जा रहा है। जल्द उसका मुबारक चेहरा देखना नसीब होगा हमें। और इसके अलावा साहिब गिराई खान की सरबराही में 30,000 का लश्कर हमारे साथ शामिल हो गया है। साहिब गिराई खान मुलाकात के मुंतजिर हैं। आला, बुलाओ।
شاهزاده ولی جگه خودم بن. साहिब गिराई खान, खुश आमदीद। तुमने हमारी जंग में शामिल होकर इसे अपनी जंग समझा, तुम्हारा शुक्रिया। ये मेरे और मेरे जवानों के लिए बाइस फख्र है मेरे आका। इसके अलावा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे तख्त के झगड़े में मेरी मदद की और मेरे घर वालों की आपने हिफाजत फरमाई। वालिदा बहुत परेशान थी। मैं उनके वतन कुरम में फसाद का खात्मा और वहाँ अमन चाहता हूँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। आपकी नवाजिश रही तो आ जाएगा वो दिन भी। मेरी बेटी आईबी के कैसी है? ठीक है माशाल्लाह, वो भी एक जंगजू है। अगर उसका बस चलता तो वो हमारे साथ जंग में शामिल हो जाती। फिक्र न करो, वो पाए तख्त में सुकून और हिफाजत के साथ है। वालिदा मुकम्मल अमन होने तक उसे वापस भेजना नहीं चाहती, ये जान लो। मैं निकोला यूरिजिच हूँ। गुंज किले का मुहाफिज कमांडर होने के नाते मैं किला आपके हवाले करता हूँ। मैं हमेशा तुर्क बादशाह के हुक्म की तामील करूंगा, ये अहद करता हूँ। कमांडर यूरिजिच, पहले ये बता दूं यहां आप मुकम्मल हिफाजत में हैं। इत्मीनान रखें, आपकी सिपा और आपकी अवाम को किसी किस्म का कोई जरर नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा मैं एक खिलत तोहफे में पेश करना चाहता हूं। सुल्तान सुलेमान के नाम पर गुंज महल और आपको आपका शहर वापस लौटा रहा हूं, लेकिन उसके बाद आप हंगरी के शाह ज़ापोलिया के ताबे रहेंगे।